Hello everyone. My name is Justice, and I am your English trainer. Today we are diving on in a session over active and passive voice once again. We'll be talking about this topic, that is future tense. Under this, we'll be talking about particularly simple future tense today. As we have discussed in previous classes, uh, simple present, simple past. So in the same way, we'll say like simple future will fall. The only difference would be of helping verb. Here we are having shall or will be. And in earlier concepts we had seen, the be form was either in the form of is/am/are or was/were. Today in this session, we are talking about simple future tense. We must know that in each passive voice, be form is changed. So to satisfy this particular tense, where we are taking shall and will as a helping verb, we must settle this helping verb with be form. So whenever it's about settling with be form, it always goes with the particular tense. So shall and will would be combined with be. And then we already know that in passive voice we use we third, that is verb third, past participle. So simple format would be this. If you are talking about active voice, then that is subject plus shall or will, then verb one or object. Okay. I already told you in more modern English, we only use will, but yes, sometimes in traditional English or in formal English, we see shall is used, right? So there we can make it shall be in that case of I and we, right? So simple format is here: active voice, subject plus shall or will plus V1 plus object, and then passive voice object will come in the beginning, that will be converted into passive voice. Then we'll be considering object as subject, right? So object will come in the beginning, and then shall or will, and plus be, then we third, and then by, then subject. So this is the simple format. And if we are talking about examples, it will be active voice. Tom will chase Jerry. So this is an example of active voice. Tom will chase Jerry. Jerry. Tom will chase Jerry. Tom Jerry का पीछा करेगा. तो पैसिव वॉइस पे विल बी जेरी विल बी चेज्ड बाय टॉम. तो जेरी का पीछा किया जाएगा टॉम के द्वारा. सो दिस वी कैन सी टॉम जेरी का पीछा करेगा और जेरी का पीछा किया जाएगा टॉम के द्वारा. हमारा सेंटर चेंज हो गया है. एक सेंटर में हम प्रायोरिटी दे रहे हैं सब्जेक्ट जो कि हमारा यहाँ पे है टॉम, और दूसरे में हम टॉम का जो ऑब्जेक्ट है टॉम के लिए जेरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं. ओके. तो एक बार समझ लेते हैं फिर से हिंदी में. सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने बात की कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है. और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, बाकी शैल और विल उसके जस्ट बाद लगेगा, और बी लगा करके वर्ब थर्ड लगाएंगे, एंड उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट से क्लोज कर देंगे. ठीक है. जैसे टॉम विल चेज जेरी, तो यहाँ जेरी विल बी चेज्ड बाय टॉम. एक बात मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का यूज करते हैं, आई वी यू ही शी इट किसी भी चीज के साथ. बट ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं. डिड आई जस्ट हियर द सेंटर इंस्टीड ऑफ द सेंटेंस? आई डिडंट गेट दैट. आई स्पोक सेंटर. So active and passive voice we have seen. So according to this structure, I request you to convert a sentence into passive voice. That is, you will take
water. You will take water. You will take water. Do it. Yes. So you're writing water will be taken by you. Yes. Water will be taken by you. Correct. Simple. So in this way you will be doing it. Okay. You will take water. आप पानी पिएंगे और पानी आपके द्वारा पिया जाएगा. बहुत ही सिंपल था ये. अम, अब मुझे अपने सेंटर से सिंपल लग रहा है या फिर आपके लिए भी आसान था समझना. बताएंगे. Did you understand this? Yes or no? Was it difficult to understand? You understood? Okay. Okay. All right. So इजी था ये. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. तो उसी तरह से सिंपल फ्यूचर कर ले. बस डिफरेंस किसका आ जाता है? द ओनली डिफरेंस इज दिस, ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. विल और शैल के साथ आना है. और हमने आपको पहले ही बता रखा था जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तभी बोला था, बी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बी जो है वो तो आएगा ही आएगा इसमें. तो वही चीज शैल और विल के साथ सेटल हो गया है बी. तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. तो ऐसे कर लेंगे. ओके. अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब आप लोग मुझे बताएंगे अपने कंसाइंस से. वुड द पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस पॉसिबल? Would the passive of future continuous be possible? Would it be possible? No. No. Yes. A reason. Conceptually, can you make me understand why it isn't possible? I told you the reasons in earlier classes कि कंटिन्यूअस में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता फ्यूचर में, और या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं हो पाता. Due to be. Yes, due to be. Correct. B is already present and we can't use. Yes, you can hear the session. We can't use be two times. That is the reason. Being and be can't use be used together. Yes, will be already used. Yes, good, well done. So simple future tense we have understood. Active voice, that is subject plus shall or will, or then be1 plus object. राइट. सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, प्लस वी1 और ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टेंसेस में. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और शैल और विल के साथ बी लग जाएगा, वर्ब थर्ड लगेगा, बाई लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा. एग्जाम्पल देखे लिया है. टॉम विल चेज जेरी. टॉम जेरी का पीछा करेगा. तो इसका हो जाएगा जेरी विल बी चेज्ड बाय टॉम. कुछ और कर लेंगे, आप लोग बताएंगे आंसर्स. ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. मयंक आप लिखेंगे उसमें चैट में. बताएंगे आप. यू विल टॉक टू हिम. यू विल टॉक टू हिम. यू विल टॉक टू हिम. हिम को हम चेंज करेंगे
सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे इसको। स्टार्टिंग में हिम का ही होता है विष्णु जी, ठीक है। हिम का ही। यू विल टॉक टू हिम। जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस। यू विल टॉक टू हिम। यू विल टॉक टू हिम। डू इट फास्ट। सुरजीत जी, यू आर इनविजिबल। यू विल टॉक टू हिम। हम्म। You will talk to him. You are answering. He. Where are you, Surjit ji? You have to answer. You will talk to him. Convert it into passive voice. You will talk to him. Object क्या है यहाँ पर? Him है object, तो him को हम starting में लगाएंगे. It's not to, not with. You will talk to him. It's to, not with. Yes, okay. You will talk to him. Talk to him. ऑब्जेक्ट आपका हिम है तो हिम का ही हो जाएगा स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर विल बी। मॉडर्न इंग्लिश में विल बी ही आता है हमेशा, आई और बी के केस में भी। बट हाँ, ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई बी के साथ शेल लगा सकते हैं। और यहाँ तो ही विल बी कर लिया। और टॉक का टॉक जो होता है, और टू को टू लगाए रखेंगे यहाँ पर। टॉक टू बाई यू। यस, दैट्स करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा, लिख लेंगे मैं। ही विल टॉक टू हिम का बनेगा। सॉरी, यू विल टॉक टू हिम का बनेगा। सेंटेंस था यू विल टॉक टू हिम, इसका बनेगा ही विल बी टॉक्ड टू बाई यू। ठीक है। अगला लिखेंगे, इट विल हर्ट यू। इट विल हर्ट यू। इट विल हर्ट यू। इट विल हर्ट यू का बनाएंगे पैसिव वॉइस। इट विल हर्ट यू, यह आपको तकलीफ देगा। इट विल हर्ट यू। इट विल हर्ट यू। यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू स्टार्टिंग में आएगा। मयंक, आपने एक भी आंसर नहीं किया, इसका आंसर करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। इट विल हर्ट यू। सिंपल विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं है। बाई लगा करके फिर बाद में सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। पहले ऑब्जेक्ट विल बी प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। यू आपने किया है, कर रहे हैं, ठीक है। यू विल बी हर्ट बाई इट। हर्ट का थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, हर्टेड नहीं होता, हर्ट हर्ट हर्ट। ओके। हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्टेड नहीं होता। सो यहाँ पर सिंपल हम हर्ट 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 ये लगा लेंगे, हर्ट। तो यू विल बी हर्ट बाई इट। ओके। हर्टेड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म हर्ट ही रहता है। ठीक है। यू विल बी हर्ट बाई इट। तो इट विल हर्ट यू क्या हो जाएगा, यू विल बी हर्ट बाई इट। यू। इट विल हर्ट यू बोला था मैं जी, तो आपने हिम क्यों कर दिया बाई इट। इट करेंगे बाई इट। इट विल हर्ट यू, इसका मतलब यू विल बी हर्ट बाई इट। करेक्ट। नेक्स्ट एक और बताएंगे, यू विल नॉट टेक मेडिसिन। यू विल नॉट टेक मेडिसिन, और मैं इसको बोल सकता हूँ यू वॉन्ट टेक मेडिसिन। नॉट कहाँ पर आएगा, विल के जस्ट बाद आएगा। आपको याद होगा, एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, यू वर टोल्ड द कॉन्सेप्ट दैट whenever there is an auxiliary verb that contains more than a word, then we add not just after the first word. We just categorize it into category. First we call root verb, and second we call suffix, coming words, right? सो जो आपका रूट वर्ब होता है उसके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। एंड सेम अप्लाइड, सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन इंट्रीगेटिव। जो रूट वर्ब होता है जो मेन फर्स्ट कैटेगरी में आएगा,
उसको हम पहले लेकर के आते हैं, बाकी बाद में सब्जेक्ट के बाद जाता है। तो विल नॉट बी और वॉन्ट बी टेकन बाय यू, दैट्स करेक्ट। मेडिसिन वॉन्ट बी टेकन बाय यू, या फिर मेडिसिन विल नॉट बी टेकन बाय यू। बी नहीं लगाया है आपने मयंक जी। मेडिसिन विल नॉट बी टेकन बाय यू, यस दैट्स करेक्ट। इसमें लोग मेडिसिन विल नॉट बी टेकन बाय यू कर रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, विल बी का विल नॉट बी हो गया। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, तो बताएंगे, विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे? विल यू टेक टी, विल यू टेक टी, विल यू टेक टी का बनाएंगे जल्दी से। विल बी में याद रखेंगे, जो आपका पहला कैटेगरी में आएगा वो विल आता है, सेकंड कैटेगरी में बी आएगा, यानी सफिक्स के रूप में आप कह सकते हैं। मोटा मोटा समझने के लिए है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको किसी ग्रामर की बुक में मिले। ठीक है, समझने के लिए मैंने ये चीजें बताई थी आपको। तो विल भी गलती कर दी है ना, समझाया तब भी गलती कर दी सुजीत जी ने। मैंने बताया था कि जब भी विल बी, इसमें दो चीज आ गई ना, हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गया, तो दो वर्ड्स आ गए हैं। दो वर्ड्स आते हैं तो क्या बताया था, समझाया था, अभी फिर से सुनेंगे। मैंने समझाया था जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड का हो, तो वहां पर पहला जो वर्ड होता है उसको हम पहली कैटेगरी कह देंगे, या फिर हम उसको रूट वर्ब कह देंगे, रूट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, रूट हेल्पिंग वर्ब कह करके चलेंगे। और रूट हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में हमेशा आगे लगाते हैं। जितना बचता है आगे, चाहे एक वर्ड बचा हो या दो बचे हो, उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। और यही चीज मैंने आपको नेगेटिव में बताई थी, कि रूट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना होता है। यानी विल बी है तो यहाँ पे विल नॉट बी होगा, है ना, विल बी नॉट कभी नहीं हो सकता। तो ये, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, रूट हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, यानी फर्स्ट कैटेगरी वाला वर्ड हमारा विल है। सेकंड कैटेगरी में बी आ रहा है, तो सेकंड कैटेगरी हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाता है। ठीक है सुजीत जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सुजीत जी, लिखेंगे अभी दोबारा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, विल यू टेक टी, है ना, विल यू टेक टी। तो हमारा विल यू टेक टी, विल बी में जाएगा सुजीत जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विल टी बी टेकन बाय यू, दैट्स करेक्ट सुजीत जी। विल आगे आएगा, क्यों? क्योंकि दो वर्ड्स आए हैं हेल्पिंग वर्ब में। जब दो वर्ड्स आते हैं तो हम दो कैटेगरी में बांट लेंगे, दो आए तीन आए, है ना, तीन से ज्यादा नहीं होते। आपने देखा होगा टेंसेस में, विल हैव बीन एक सबसे लंबा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। यस, योर आंसर इज करेक्ट मैम जी। तो विल टी बी टेकन बाय यू, दैट्स करेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और विल में डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे मैम जी। तो ये हो गया। ऐसे ही आप बताएंगे अब मुझे नेगेटिव अगर पूछूं तो नेगेटिव में एक तो विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वांट लगाते हैं तो फिर हमें वो अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, वांट लग गया तो नॉट नहीं लगेगा। और एक विल नॉट बी होता है, तो हम, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, इसको आप करेंगे कन्वर्ट। विल शी नॉट फ्लाई द काइट, विल शी नॉट फ्लाई द काइट। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, वॉन्ट शी फ्लाई द काइट। आप चाहें तो वॉन्ट में आंसर करें, या आप चाहें तो विल नॉट, जैसे हमने बोला वैसे ही आप कर सकते हैं, विल शी नॉट फ्लाई द काइट। देखिए मेरी प्रायोरिटी कैसे, विल आगे लग गया, रूट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने शी बोला, उसके बाद नॉट लगा दिया। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दूसरा था ही नहीं, लेकिन इसको पैसे में ले जाएंगे तो विल भी होता है, विल नॉट भी होगा वहां पर, विल नॉट बी। तो उसमें क्या आगे लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, ऐसा आप बताएंगे उसके हिसाब से। या वांट का यूज भी आप कर सकते हैं। तो विल शी नॉट फ्लाई द काइट, इसका आंसर करेंगे, विल शी नॉट फ्लाई द काइट, या फिर वॉन्ट शी फ्लाई द काइट। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन मतलब पूछे मैंने, एक ही है क्वेश्चन दोनों एक्चुअली में। एक में मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, और एक में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं किया है। अनामिका जी ने गलती कर दी है, जो बात मैंने सुजीत जी को समझानी चाहिए थी। अनामिका जी ने बस एक गलती ये की है कि वो कंफ्यूज हो गई हैं कि नॉट कहाँ पर आना है। मैंने बताया था कि विल बी है, मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो वर्ड है, ठीक है, तो विल और बी के बीच में नॉट आता है। तो अब उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने बी के जस्ट बाद नॉट लगा दिया। अब विल तो आगे आ गया, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सब्जेक्ट के बाद हम जो सेकंड वाला हमारा वर्ड है वो आ जाएगा, तो नॉट तो उसके बीच में ही लगना चाहिए था ना। तो विल नॉट बी होता है, तो वैसे ही विल द काइट, फिर उसके बाद नॉट जो बचा हुआ है,
नॉट बी आ जाएगा। ठीक है। विल द काइट नॉट बी फ्लोन बाय हर, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है अपने आप में एक्चुअली। तो विल द काइट नॉट बी फ्लोन बाय हर, तो क्या पतंग उसके द्वारा नहीं उड़ाई जाएगी, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अनामिका जी, हैव यू अंडरस्टूड? तो विल द काइट नॉट बी फ्लोन बाय हर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे आप मुझे, अम, अनामिका जी, हैव यू अंडरस्टूड? राइट, यस और नो? अगर नहीं समझ में आया देन आई कैन रिपीट। ओके, सो यू अंडरस्टूड। अगला बताएंगे आप मुझे, हु विल प्ले हॉकी। हु विल वाला मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तब भी आप कोशिश करेंगे इसको। हु वाले में एक चीज बताई थी आपको। यस, हु विल प्ले हॉकी। हु का बाय हुम होता है, इस बात को मैंने बताया था आपको बहुत पहले, है ना? हु विल प्ले हॉकी। मयंक जी ने किया है, हॉकी विल बी प्लेड बाय हुम। अतुल जी ने किया है, बाय हुम हॉकी विल बी प्लेड। यस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे मयंक जी आप ही। हॉकी विल बी प्लेड बाय हुम, सावित्री जी ने भी किया है। बाकी और लोग भी बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। हु विल प्ले हॉकी, राइट? हु विल प्ले हॉकी। यहाँ पर हमारा जो हॉकी है वो ऑब्जेक्ट है, और हु का मतलब होता है कौन। कौन जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में हम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न है। यस, बस कुछ ही आंसर आए हैं, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। सुरजीत जी एंड दीपा जी आंसर्ड, विष्णु जी, संगम जी, अच्छा हम लोगों ने को लिख दिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, बाय हुम हॉकी विल बी प्लेड, दैट्स करेक्ट। और जिन लोगों ने किया है, हॉकी विल बी प्लेड बाय हुम, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, बाय हुम आप एट द एंड लगा सकते हैं। ठीक है। बट जनरली जब हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता है तो हम बाय हुम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाय हुम हॉकी विल बी प्लेड, सेकंड प्रायोरिटी हॉकी विल बी प्लेड बाय हुम, एम्फसाइज्ड है वहां पर, बाय हुम एट द एंड, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे बाय हुम हॉकी विल बी प्लेड। ठीक है। शुरुआत में हम बताएंगे कि किसके द्वारा हॉकी खेला जाता है, ये हमारा साइंस हो गया। और आपका वो जो आपने लिखा है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो ये होगा, हॉकी किसके द्वारा खेला जाता है। तो गलती नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय हुम को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है। हालांकि करेक्ट दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट हैं, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। आप बताएंगे मुझे, वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, या वाई विल शी नॉट टेक द मनी। वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, मयंक जी आपका करेक्ट है, बता तो दिया मैंने। ठीक है। वाई विल शी नॉट टेक द मनी, या फिर वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, बात एक ही है दोनों, एक में मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, एक में नहीं। वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, जल्दी से बताएंगे। वाई वॉन्ट शी टेक द मनी, या वाई विल शी नॉट टेक द मनी, जल्दी से बताएंगे। वाई विल शी नॉट टेक द मनी, या फिर वाई वॉन्ट शी टेक द मनी। याद रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमेशा आगे आएगा। ठीक है। अतुल जी, दीपा जी एंड अनामिका जी, अनामिका जी आंसर इन बोथ वेज। ओके। ओके, अतुल जी।
वाई विल, सुरजीत जी ने एक गलती कर दी, फिर से वही गलती की, मतलब उससे थोड़ा रिलेटेड गलती की है। आपने क्या किया, वाई विल नॉट द मनी बी टेकन बाय हर कर दिया है। गलती क्या की है आपने? मैंने कहा था रूट हेल्पिंग वर्ब केवल आगे आएगा, आपने नॉट भी को आगे, नॉट भी आगे ले लिया, तो दैट इज द मिस्टेक। हाँ, अगर आप विल नॉट की जगह वांट लिखते तो ये एक्सेप्टेबल था, पर विल नॉट तो नहीं आ सकता। यस, नाउ दैट्स करेक्ट। वाई विल द मनी नॉट बी टेकन बाय हर। ठीक है। वाई विल, संगम जी ने किया है वाई विल बी नॉट, अच्छा इन्होंने वो हेल्प, वो हटा दिया। वाई विल द मनी भूल गए हैं, अरे मनी बाद में लगाया। वाई विल बी द, वाई विल बी नॉट टेकन द मनी बाय हर, नो दैट्स इनकरेक्ट। बिल्कुल ही गलत हो गया है तो। आपने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद विल लगाना था, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना था। ऑब्जेक्ट आपका द मनी है। ठीक है, वाई विल द मनी नॉट बी टेकन बाय हर, ये होगा वाई विल, वाई मनी विल नॉट बी टेकन बाय हर। विष्णु जी ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे विष्णु जी, आपका मैं फिर कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज के आधार पर आपका आंसर करेक्ट है, पर ग्रामर में हम जनरल रूल अगर फॉलो करें तो विल पहले आएगा, वाई के बाद विल लगाएंगे, और मनी उसके बाद नॉट बी टेकन बाय हर, ये करें। तो वाई विल मनी नॉट बी टेकन बाय हर, मयंक जी आपका गलत है, आपने लिखा है वाई विल मनी इज नॉट टेकन बाय हर, इज नहीं लगेगा। वाई विल मनी नॉट बी टेकन बाय हर, या शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम लोगों ने किया, वाई वॉन्ट आ सकता है, वाई वॉन्ट मनी बी टेकन बाय हर। ठीक है, तो शी विल टेक मनी, ये बोला था मैंने, तो वाई द मनी बोला था, द आ जाएगा। वाई विल द मनी नॉट बी टेकन बाय हर, वाई विल शी टेक, वाई विल शी नॉट टेक मनी, या वाई वॉन्ट शी टेक मनी, इसका ये भी कर सकते हैं, वाई वॉन्ट मनी द मनी बी टेकन बाय हर। ठीक है, द बोला हुआ द लगा देंगे, नहीं बोला है तो नहीं। ओके, वाई विल द मनी नॉट बी टेकन बाय हर, दैट्स करेक्ट। एक ऐसे ही बताएंगे मुझे, व्हाट विल यू डू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट विल यू डू इज पैसिव वॉइस पॉसिबल, बताएंगे क्या बनेगा पैसिव। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, और मैन ऑफ यू आर फीलिंग लाइक पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल इन दिस सेंटेंस। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? इज पैसिव वॉइस पॉसिबल, जिनको लग रहा है नहीं पॉसिबल है वो भी लिखेंगे। No. आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे। व्हाट विल यू डू, अतुल जी, कृष्ण जी, आप लोगों ने किया है व्हाट विल बी डन बाय यू। ठीक है, बाकी और कोई कुछ? ठीक है, सिंपल सा फंडा हमारा क्या था, यहाँ पर हमें लगाना है व्हाट और विल बी डन बाय यू। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, आप अब कैसे कहो कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचाने। ये बोला कि आप क्या करोगे, है ना, एक सीधा स्टेटमेंट है कि आप क्या करने वाले हो। और अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट अपने आप क्या जो वर्ड है वही अपने आप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या की जगह कोई चीज आएगी ना, तो क्या का आंसर होगा, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, ना आई एम गोइंग टू स्टडी, ना कुछ भी हो सकता है आंसर वहां पे। आई एम, आई विल गो टू मार्केट, ऐसा हो सकता है आंसर। तो व्हाट की जगह कुछ भी आ सकता है, मार्केट जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट ही कंसिडर कर लिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट विल बी डन बाय यू, ये हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने हु वाला बताया, हु में दो कैटेगरी हो सकती है, जैसे हमने कहा ना,
कि हु विल गो देयर, हु विल सॉरी हु विल टॉक टू यू, राहुल बोला था टॉक टू हिम, तो आपने किया था बाय हुम ही विल बी टॉक्ड टू, पता नहीं कुछ भी बोला था मैंने, तो बाय हुम वाला बना था, ठीक है। एक, जैसे आप समझिएगा, मैंने बोला कि हु विल टॉक टू यू, तो आप उसको करते हैं बाय हुम विल ही बी टॉक्ड टू, है ना, बाय हुम विल ही बी टॉक टू, आप ये करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि whom will you beat, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे एक सेंटेंस में बोल देता हूँ इससे रिलेटेड, उसका आप तो बना लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ हु विल बीट यू, तो इसका तो बाय whom से आप कर लेंगे, बाय whom विल यू बी बीटन, हु विल बीट यू, बाय whom विल यू बी बीटन। और मैं बोल रहा हूँ whom विल यू बीट, आप किसको पीटेंगे, अब बताएंगे आप इसमें, whom will you beat, वाओ, नाइस, whom will you beat, अलग ही केस हो गया ये तो। तुम किसको पीटोगे या आप किसको पीटोगे। अतुल जी जो कर रहे हैं उन्होंने इसको समझा है और वो आंसर कर पा रहे हैं। आप इसको सेंस पर आप लेंगे, है ना, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो whom will you beat, आप किसको पीटेंगे, इसका मतलब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इसका होना चाहिए कि आपके द्वारा कौन पीटा जाएगा, है ना, किसको पीटा जाएगा आपके द्वारा, या आपके द्वारा कौन पीटा जाएगा, कौन पिटेगा आपके द्वारा, कौन पिटेगा, है ना, ये सेंस करता है। तो कौन पिटेगा आपके द्वारा, या कौन, या किसे पीटा जाएगा आपके द्वारा, तो यहाँ पे कौन या किसी की इंग्लिश आएगी हु, ठीक है, हु का यूज करेंगे। हुम का यहाँ पे तो क्या कर देंगे, हु कर देंगे, कौन, है ना, कौन मतलब कोई पर्सन होगा यहाँ पे। तो हु विल बी बीटन बाई, दैट विल बी द करेक्ट, ऐसे इसको लिख लेंगे इस तरह का। कोई सेंटेंस आता है तो उसको उसमें आपको हेल्प मिलेगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, whom will you beat, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, who will be beaten by, ठीक है, इस तरह से आप ले लो, whom will you beat, who will be beaten by। चलिए साथ में वो वाला एग्जांपल कर ही लेते हैं, क्यों मिस करें उसे। अगर मैं बोलूं who will beat you, तो इसका क्या होगा जल्दी से बताएंगे। ये तो मैंने बता दिया who will be beaten by you। अब मैं पूछ रहा हूँ who will beat you, आपको कौन पीटेगा, who will beat you बताएंगे जल्दी से। who will beat you, who will beat you, जल्दी से बताएंगे, who will beat you, am I audible man, by whom you will be beaten कर रहे हैं, by whom will you be beaten, अतुल जी कर रहे हैं। हम्म, जल्दी से बताएंगे आप मुझे, by whom will you be beaten, ओके दीपा जी, यस करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या होने वाला है, करेक्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन ही बोलेंगे। तो वाई, सॉरी, बाय हुम विल यू बी बीटन, दैट्स करेक्ट। हाँ, जैसे उस समय कुछ लोगों ने ऐसे किया था, उस वाले चीज में थे, कोई करे इसको मान लीजिए, यू विल बी बीटन बाय होम, यू विल बी बीटन बाय होम, ठीक है, लैंग्वेज